Hello everyone. Now welcome in our second part of this video. In second part of this video we will talk about world distribution of volcanoes. तो हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ वोल्केनो है। जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्केनो रैंडमली हर जगह नहीं मिलता है, इसका होने का पीछे कोई कारण है। एंड वेरी वेल नोन थ्योरी कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी explain that, okay, it very well explained that there is a cause and effect relationship. For example, most of the volcano of the world you will see 80%, 85% volcano of the world you will see at the plate margins. Okay, plate margins पे आपको maximum volcanoes मिलेंगे. Now what is the meaning of this plate margins? जैसे मान लीजिए दो प्लेट है, this is one is called continental crust and other one is your oceanic crust. Okay, now ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, they are both are colliding with each other. So we know very well oceanic crust is more denser in nature, so it will be subducted under the continental crust. Okay, so subduction जो होगा तो इस प्लेट मार्जिन पे, यहाँ के प्लेट मार्जिन पे कुछ ना कुछ हरकतें होंगी. It will be a vibration will be more, and when this plate will be move will go so deep inside the earth, okay, say 100 kilometer depth, it will be molten, and molten होने के बाद मैग्मा जो है राइज करेगा और इस जगह पे वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा से ज्यादा देखा जाएगा. तो जो प्लेट का जो किनारा होता है, जो कॉन्टिनेंटल किनारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेट मार्जिन. ओके, जैसे मैंने बताया आपको 85 to 90% ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनो इज फाउंड एट द प्लेट मार्जिन्स. प्लेट मार्जिन्स पे ज्यादातर मिलते हैं. ओके, सो ये बात साफ साफ है कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लेट मार्जिन एंड वोल्केनिसिटी. सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज वोल्केनिसिटी. वोल्केनिसिटी इज अबाउट all the mechanism, all the phenomena result in formation of magma. When magma is rises, then it coming out from the surface of the earth, cooling, solidification, every process come under the term volcanicity. Okay, now वर्ल्ड का जो 15% जो वोल्केनो है, 15% वोल्केनो पूरे वर्ल्ड का एक्टिव वोल्केनो. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव वोल्केनो. So we know on the basis of periodicity of eruption, volcano are three types: active volcano, dormant और extinct. तो एक्टिव वोल्केनो उसको कहते हैं जो कि कंटिन्यूअसली इरप्शन जहां पर हो रहा, जहां से हमेशा लावा बाहर की तरफ आ रहा है, वहां पर हमेशा गैसेस स्मोक आर कमिंग आउट. ओके, सो दैट कम अंडर द एक्टिव वोल्केनो. तो पूरे वर्ल्ड में जो एक्टिव वोल्केनो उसका 15% जो है वो कहां किस प्लेट मार्जिन में मिलता है? कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन. Now what is this divergent plate margin? अब इसमें आप देखोगे इमेज में कि how this hot rock rises, basically this molten rock rise कर रहा. और देखिए वोल्केनिक इरप्शन जिस तरह से हो रहा है, और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन कैसा हो रहा है? एक्सप्लोजिव टाइप का हो रहा है या फिजर टाइप का हो रहा है, क्वाइट टाइप का हो रहा है. तो ये आपको देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है मैग्मा को बाहर के आने में, और क्योंकि ये दो प्लेट आपस में अलग हो रहे हैं. इट इज दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. ओके, व्हेन द टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, it called divergent plate boundary, and the gap is created when the two plates are moving away from each other. The gap is created. With the help of this gap, magma is coming out. Okay, जो लावा बाहर की तरफ आ रहा है, that come under the active volcano. Okay, और ये maximum कहां पर होता है? You will see maximum this happen in your mid Atlantic ridge. Okay, mid Atlantic ridge, जो mid Atlantic ridge है, मिड ओशनिक रीज है, वहां पर सबसे ज्यादा इस तरह का देखा जाता है. इन दिस केस यू सी two plates are moving away from each other. Okay, as these two plates are moving away from each other, so magma, okay, this magma, because of the gap is created. So when gap is created, what will happen? It will decrease the pressure. Okay, pressure जो होता है वो decrease होता है. It means super incumbent load. Okay, super incumbent load जो है that is decreases. Okay, because of superincumbent load, melting point of rock is also decreases, and because of this molten rock materials are formed, mantle rocks migrated upward. Okay, and because of the shallow depth and low pressure small pores, so magma form and also rise. So this magma started to rise, and it will come out from each and every part where you see the fracture is happening. Okay, so this type of eruption is called a fissure eruption, और इसको हम लोग कहते हैं क्वाइट. जो वोल्केनिक इरप्शन होगा वो काफी क्वाइट होगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस अ साउंड.
तो पूरे वर्ल्ड का जो एक्टिव वोल्केनो वो 15% जो कहां पर है आपका डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन में। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट वे में पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वोल्केनिज्म ऑफ ओके अब ये जो क्वेश्चन पूछेंगे वोल्केनिज्म, उसमें एक स्टेटमेंट आपको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन से पूछ देंगे, दूसरा पूछ सकते हैं मैकेनिज्म से पूछ सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट दे कैन यूज अबाउट द नेम ऑफ द वोल्केनो का, ये माउंट एटना कहां पर है, स्ट्रोम्बली किस सी में पाया जाता है, किस वोल्केनिक इरप्शन किस सी में होता है, मेडिटेरियन सी, पैसिफिक ओशन। तो इस तरह का 4 डिफरेंट स्टेटमेंट अभी का जो यूपीएससी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि दे आर नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। 4 ऑप्शन इज 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे पूछ दे मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। ओके, सो मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी कह देते तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 15% ऑफ द ओनली 15% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड एट द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। ओके, नाउ विल मूव अहेड एंड विल अंडरस्टैंड कि बाकी जो वोल्केनो है वो कहां होते हैं। नाउ इन दिस केस यू सी 80% of world active volcano are associated with a destructive or convergent plate boundaries. Okay, so convergent plate boundary means 80%, पूरे वर्ल्ड का 80% जो वोल्केनो है वो कहां पर लोकेटेड है, more located in convergent plate boundaries. Okay, now in this you see image how two plates are moving towards each other. ओके, नाउ दी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री क्या होता है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो इसमें डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, डिस्ट्रक्शन होगा क्योंकि दोनों प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो जिसका जो प्लेट डेंसर होगा दैट विल बी सबडक्टेड अंडर द लाइटर वन, तो कहीं ना कहीं टूटेगा, वो खराब होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा, वो मेल्टिंग होगा, उसका मोल्टेन मटेरियल्स में कन्वर्ट होगा और वही मैग्मा बन के ऊपर की तरफ आएगा और वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और जो डाइवर्जेंट है उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इसलिए कहते हैं कि व्हेन द टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जो गैप क्रिएट होता है इससे जो लावा बाहर की तरफ आता है एक नया क्रस्ट बनाता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन न्यू क्रस्ट, that's why it is called constructive. Okay, and it is called destructive because it destroy the whatever the crust will be subducted under the lighter one. तो ये 80% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो जो है वो कहां मिलता है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में मिलता है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि दो 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होता है, इंटरेक्शन होता है। एक तो होता है आपका ओसनिक, हो सकता है दोनों ही ओसनिक कन्वर्जन होगा। ओके, दोनों जो प्लेट होंगे दोनों ओसनिक होंगे। ओके, ओसनिक कन्वर्जन, या तो हो सकता है वन होगा ओसनिक होगा, अदर वन विल बी अ कॉन्टिनेंटल। ओके, अदर वन विल बी कॉन्टिनेंटल। एंड द थर्ड टाइप होता है कि जिसमें दोनों प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं। ओके, सो देयर 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज हैपन इन कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। लेकिन ये तीनों इंटरेक्शन के बीच में वोल्केनिक इरप्शन किस किस में होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि ओसनिक का कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, दोनों प्लेट अगर ओसनिक है तो इस केस में वोल्केनिक इरप्शन होगा। दूसरे केस में ओसनिक प्लस कॉन्टिनेंटल, इस केस में वोल्केनिक इरप्शन होगा क्योंकि वन ओसनिक है दूसरा कॉन्टिनेंटल है। थर्ड है कॉन्टिनेंटल। अब इस केस में एक्सेप्शनल है, फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी के पास जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो होता है अफ्रीकन प्लेट का कोलिजन होता है यूरोपियन प्लेट के साथ। सो अफ्रीकन प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट बोथ आर कॉन्टिनेंटल प्लेट, लेकिन इसके बीच में क्या है, मेडिटेरियन सी है, तो यहां पर कहीं ना कहीं सबडक्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। सेम केस हम देखते यही जो होता है हिमालय की लोकेशन में, लाइक इन दिस केस इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट और वी कैन से एशियन प्लेट। तो दोनों प्लेस में क्या है, कॉन्टिनेंटल है, दोनों प्लेट क्या कॉन्टिनेंटल है, दोनों के बीच में टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, फोल्ड माउंटेन, बट नो वोल्केनिक इरप्शन बिकॉज जो क्रस्ट है, यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो काफी थिकर है, 70 किलोमीटर मोर थिकर। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस सबडक्शन यहाँ पर हो नहीं पाता है और जिसकी वजह से मोल्टेन मटेरियल्स का बन नहीं पाता और वो ऊपर की तरफ आ नहीं सकता है। इसलिए वोल्केनिक इरप्शन कॉन्टिनेंट में होता है, लेकिन वो मेडिटेरियन केस में होता है, मेडिटेरियन सी के में अल्पाइन बेल्ट जिसको कहते हैं, लेकिन हिमालय केस में ये नहीं होता क्योंकि बहुत ही थिकर क्रस्ट होता है। ओके, सो 80% ऑफ एक्टिव वोल्केनो वेयर यू विल सी अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, very important for exam point of view. Okay, now let's focus on 3 important location of the world where we see active volcanic zone. So 3 major zones of volcano in the world.
ये तीनों जोन अर्थक्वेक के लिए भी है। दिस ऑल थ्री जोन आल्सो मींस वेयर यू सी द अर्थक्वेक जो इरप्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, कहां कहां अर्थक्वेक होता है, तो ये तीनों लोकेशन भी उसी के लिए वैलिड है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो बेल्ट होता है वो होता है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकेंड होता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, एंड थर्ड वन इज मिड ओशनिक रिज बेल्ट। फोर्थ वन भी होता है जिसमें हम लोग कहते हैं जिसमें कि कॉन्टिनेंट, मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी कुछ वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। सो दैट इज एक्सेप्शनल केस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अलग से, क्योंकि वो कैसा वोल्केनिक इरप्शन, तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि ये तीनों के पीछे मैकेनिज्म जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने सॉल्व कर दिया। क्योंकि सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, इसका मतलब है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ओके, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो सकता है या हो सकता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये दोनों ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताते हैं कि ये दोनों एक रीजन है वोल्केनिक इरप्शन होने का। ओके, सो वी विल फोकस हियर फर्स्ट ऑन सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 2021 का मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है अबाउट द सर्कम पैसिफिक बेल्ट के बारे में, जीएस पेपर का मेंस में पूछा है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट को हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये इमेज जो बन रहा है यहां से यहां तक, आप देखो ये पूरा क्या एक रिंग बन रहा है, ओके, पूरा एक रिंग बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, ना यहाँ का मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू सी दिस ऑल लोकेशन आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनो। सो दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, western margin of South America, eastern margin of Asia, okay, some islands like Philippines, Japan Island, okay, this all are islands are associated with a very active volcano। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, उसमें आपको देखोगे कि मैक्सिमम जो वोल्केनिक इरप्शन वर्ल्ड में होते हैं और जो न्यूज में आते हैं, इवन अर्थक्वेक के बारे में आप जब पढ़ोगे, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द लोकेशन आर is located in these areas, okay, and this entire is called a Pacific Ocean। ये पूरा क्या है, पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसिफिक ओशन श्रिंक कर रहा, श्रिंकिंग हो रहा, क्योंकि ये कोलिजन हो रहा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से यहां पर, ओके, और पैसिफिक प्लेट इससे कोलिजन हो रहा है एशियन प्लेट से। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ओशनिक प्लेट है, लाइक फिलीपींस प्लेट है, ओके, दिस प्लेट्स आर आल्सो कोलाइडिंग विद पैसिफिक प्लेट। तो अगर एक ये प्लेट के बारे में हम लेते हैं, दिस सपोज दिस इज द पैसिफिक प्लेट, ओके, दिस इज द पैसिफिक ओशनिक क्रस्ट, ओके, लेते हैं। नाउ दिस इज योर एशिया, एशिया का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एंड दिस इज जस्ट टेक अ अमेरिकन क्रस्ट दैट इंक्लूड योर बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, तो अमेरिकन क्रस्ट अगर बोलते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों हो जाएगा। ना इन दिस केस यू सी द इंटरेक्शन मीन्स ये भी क्या है, इस पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इज कोलाइडिंग विद दिस पार्ट ऑफ द एशिया, एंड दिस पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इज कोलाइडिंग विद दिस पार्ट ऑफ द अमेरिका। ना दोनों ही जगह पे जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिल रहा है, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री दोनों तरफ ही मिल रहा है। अब इसमें यह जानना है कि पैसिफिक ओशनिक क्रस्ट जो होता है मोर डेंसर होता है, डेंसिटी इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एशिया के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों से ज्यादा डेंसिटी किसका, पैसिफिक ओशन है। तो जब कोलिजन होगा दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली पैसिफिक प्लेट विल बी सबडक्टेड अंडर द एशियन प्लेट, और इस केस में भी पैसिफिक प्लेट ही सबडक्ट करेगा अमेरिकन प्लेट में। तो कहीं ना कहीं जो हमको पता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पैसिफिक प्लेट कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये श्रिंक हो रहा है। और जो पैसिफिक क्रस्ट जो ओशनिक क्रस्ट है, जो कि लिटिल बिट डेप्थ में जा रहा से 80 to 100 किलोमीटर डेप्थ, क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स दैट काउज द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन डेप्थ, and that result in the molten materials is formed. So this crust will be converted into molten rock materials, and this molten rock material further rises and it causes the volcanic eruption at the plate margin. Similarly here also this oceanic crust is moving downward, will go depth, and 100 kilometer depth में क्या होगा, it will be cause the molten materials, and this molten material will be started to rise and cause a volcanic eruption at the plate margin of North America and South America. Now you see here most of the volcanic eruption, okay, active volcano you will see at the western margin of the North America and South America, because the Pacific plate is under subducting under the North American and South American plate. Similarly you see the all the trenches जो होता है ना, trenches एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेंचेस का फॉर्मेशन सिर्फ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ही होता है,
ये याद रखिएगा, एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर यू विल सी द ट्रेंचेस, मोस्ट ऑफ द ट्रेंचेस इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड विद कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूज नो, मिड ओशनिक रीज, ओके, मिड ओशनिक रीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, okay, where it is mid oceanic ridge is always associated with your divergent plate boundary, okay, always as a divergent plate boundary। तो ये दो जो ट्रेंच और मिड ओशनिक रीज का दोनों का डिफरेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि कहां लोकेटेड है। ओके, सो ट्रेंचेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिकॉज ऑफ सबडक्शन प्रोसेस काउज द डीपेस्ट, मोर डीपर होगा और यहाँ पर ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होगा। मिड ओशनिक रीज क्या होगा? It is the longest mountain chain present on the surface of the earth. Okay, 75,000 kilometer entire Atlantic Ocean. You see the mid-Atlantic ridge is located. I will show you in map. तो ये जो कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होता है, and this is as with the convergent plate boundary. So Pacific plate is subducted from both the sides. That's why we can say that Pacific oceanic crust is shrinking. Okay, ये shrink हो रहा है, and that's why you see the active volcano यहाँ पर ज्यादा है। मोस्टली दे आर कंपोजिट वोल्केनो और सेंट्रल इरप्शन टाइप। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है काफी मतलब ज्यादा जोरदार होते हैं, एंड वोल्केनिक इरप्शन इज वेरी वॉलेंट। ओके, सो अनलाइक योर मिड अटलांटिक रीज जहां पर क्वाइट और फिजर टाइप का इरप्शन होता है, यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन होगा दैट विल बी मोर वॉलेंट एंड दिस विल बी एक्सप्लोसिव इन नेचर। ओके, so this is the first location where you see the most of the volcano of the world, and this is the location also earthquake यहाँ पर ज्यादा होता है। then second one is, सेकेंड जो होता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ना मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो हो गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, कॉन्टिनेंट जो दो क्रस्ट है दोनों का कन्वर्जेंस होने की वजह से वोल्केनिक इरप्शन होगा, दैट विल कम अंडर द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ मेडिटेरियन सी। ओके, दिस इज कॉल्ड अफ्रीका। ओके, दिस इज यूरोप। ओके, यूरोप है, ये इटली है। ओके, देन दिस इज योर स्पेन। ओके, दिस कॉल्ड पोर्चुगल। So ये Strait of Gibraltar, this is called Strait of Gibraltar. Okay, so the Mediterranean Sea, this is called your Black Sea. Okay, this is called Black Sea. Now you see here what will happen. Most of the active volcano located Mount Stromboli, Vesuvius, Mount Etna in Italy. These all volcano are located here in mid-continental belt. So ये जो आ जाता है mid-continental belt दूसरा location है। Now the volcano of Alpine Mountain, यहाँ पर Alps Mountain जो है, okay, Alpine Mountain chain and the Mediterranean Sea, that will come under the mid-continental belt. So volcano fault zone of Eastern Africa. अब अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां भी volcanic eruption आप देख सकते हो। Like if this is the map of Africa, I will show you a very small map so that you will have just a little bit idea. Okay, अगर अफ्रीका का जो भी ईस्टर्न पार्ट है, ओके, ईस्टर्न पार्ट है, अब ये आपको पता है कि ये क्या है, दिस इज द बेसिकली रेड सी। ओके, रेड सी है, एंड दिस इज where up एक collision हो रहा है, means this part is moving here and this part is moving here, so यहाँ भी एक divergent plate boundary हो रहा है, and इसकी वजह से भी यहाँ पे volcanic eruption ज्यादा होते हैं। so volcano fault zone Eastern Africa, convergence and collision of Eurasian plate and African plate and Indian plate that cause for the volcanic eruption. Most of the volcanic eruption you will see. Now example they can ask you which of the following volcano are located mid continental belt. So it include your Stromboli volcano, Mount Vesuvius, Mount Etna. Example is very important. Now the compact and thick crust formed due to the intense faulting. Now this is the answer of my question. Why you not see a volcanic eruption when there is a conversion of continental crust near the Himalayan belt? So Himalayan belt का क्या होता है, बहुत ही thick crust formed हुआ है due to intense folding. Okay, folding होने की वजह से this is cause of folding. Okay, ये folding होने की वजह से जो crust का formation वो काफी intense हुआ है, and that's why no volcanic eruption is present because the crustal part is more thicker, 70 kilometer here thicker hai. Okay, now the fault zone of some Eastern Africa like Mount Kilimanjaro, Meru, Elgon, Virunga, Rangwa, this all are example of Eastern Africa volcanic eruption. Okay, third important location for where you see the most volcanic eruption in world is called mid Atlantic belt. जैसे मैंने बताया mid Atlantic belt, this is called mid Atlantic ridge. As you see mid Atlantic ridge का ये पूरा location, it means here plates are moving away from each other. Okay, as you see African plate, South American plate is moving westward. Okay, South America, North American plate is moving westward, and European plate is moving eastward. So in this case a divergent plate boundary, this is called divergent plate boundary.
Now this is called Iceland. From here the volcanic eruption start, और ये पूरा लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन है. ओके, लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन आप देख सकते हैं. दिस कॉल्ड मिड अटलांटिक रीजन. नाउ हियर द volcanic eruption will be like quite or fissure type, because a gap is very well established because the movement of the two plates are away from each other, so molten material will be coming out. So here very example Lacky fissure eruption 1783 में जो हुआ था, काफी ज्यादा इरप्शन होता, बेसिक लावा निकला था और काफी ज्यादा एरिया कवर किया था. Okay, like some of the active volcano here are Lesser Antilles, Southern Antilles, Azores Island. Okay, these all are the important location of a volcano. Now you see the location here, like you see Azores Island. This is the Azores Island. Okay, this is the active volcano, very close to mid-Atlantic. Then Mount Pelee 8 मई 1982 को मार्टिन आइलैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज में, कैरिबियन सी के पास, जो कि काफी दर्दनाक हुआ था. टोटल 28,000 वहां के जो इनहेबिटेंट्स थे वो सारे के सारे मारे गए थे, सिर्फ 2 आदमी बचे थे. तो क्योंकि ये डॉर्मेंट वोल्केनो था, लोगों को लगा कि अब ये कभी इरप्शन होगा नहीं, लेकिन अचानक से माउंट पिली वाज इरप्टेड एंड दैट रिजल्ट वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो. ओके, जो कि काफी ज्यादा हुआ था, और वहां का जो लावा जो स्प्रेड हुआ था वो बेसिक लावा था, एंड दैट कवर अ लार्जर एरियाज. ओके, सो दिस इज कम अंडर द मिड अटलांटिक बेल्ट. Now we'll discuss here the important concept called crater versus caldera. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है about what is crater, what is caldera. So हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है. See, crater and caldera both are, अगर देखा जाए तो volcanic mouth ही है एक तरह से, ठीक है. volcanic mouth जो है वो कभी ज्यादा चौड़ा हो गया तो क्रेटर हो गया, फिर उसको कैल्डेरा भी कहते हैं. तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैल्डेरा के बारे में. कैल्डेरा होता क्या है? सबसे पहले तो कैल्डेरा में ये है, कैल्डेरा इज अ डिप्रेशन. समझ गए? डिप्रेशन, इट्स अ वेरी लार्ज डिप्रेशन क्रिएटेड आफ्टर वोल्केनो रिलीज द मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ इट्स मैग्मा चैम्बर इन एन एक्सप्लोसिव इरप्शन. अब इसका समझने का तरीका ये है कि सपोज दिस इज अ वोल्केनिक का एक कोई वोल्केनो है, ठीक है. ये वोल्केनिक पाइप से, एंड दिस इज द मैग्मा चैम्बर इनसाइड द अर्थ. तो ये मैग्मा चेंबर में जितना भी मैग्मा है सारा इरप्शन हो चुका, सारा बाहर आ चुका, सोलिडिफाइड हो चुका. अब अंदर में कुछ नहीं बचा, ये पूरा खोखला हो चुका. तो क्या करे होगा कि ये पूरा का पूरा मटेरियल विल बी कोलैप्स्ड. तो पूरा कोलैप्स होगा, सिंक हो जाएगा. कोलैप्स होने के बाद जो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा वहां पर, उसको हम लोग कहते हैं कैल्डेरा. ओके, सो कैल्डेरा एक डिप्रेशन है क्रिएटेड आफ्टर अ वोल्केनिक रिलीज द मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ इट्स मैग्मा चैम्बर इन एक्सप्लोसिव इरप्शंस. एक्सप्लोसिव इरप्शन हुआ, बहुत एक्सप्लोसिव हुआ, सारा मैग्मा का मटेरियल जो सारा निकल गया. अब अंदर वो खोखला हो गया, तो क्या होगा कि पूरा सिंक करेगा. सो विदाउट एनी स्ट्रक्चरल सपोर्ट बिलो, द लैंड अराउंड द इरप्टिंग वोल्केनिक वेंट और वेंट कोलैप्सेस इनवर्डली. ओके, इनवर्डली क्रिएटिंग द बॉल शेप्ड कैल्डेरा. तो एक बॉल शेप्ड कैल्डेरा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है. तो इसका सिंपल में अंडरस्टैंड ये करेंगे कैल्डेरा होता है क्या है. कैल्डेरा का मतलब कि एक एक्टिव वोल्केनो था जिसकी में पूरा वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मटेरियल्स पूरा निकल गया, तो वो अंदर आसपास के जो लैंड होंगे, क्योंकि लावा के जो वेट काफी बढ़ जाएगा, वहां से जो वेट बढ़ जाएगा, तो जो भी क्योंकि अंदर में तो खोखला है, अंदर में सारा मटेरियल निकल चुका है बाहर, तो क्या होगा, इट विल बी स्टार्टेड टू कोलैप्स डाउनवर्ड. तब पूरा डाउनवर्ड इनवर्डली वो पूरा कोलैप्स करेगा और बॉल शेप्ड एक गड्ढा बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्डेरा कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने एक यूट्यूब पे आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें कि यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हाट एग्जैक्टली द कैल्डेरा इज. ओके, सो आई विल शो यू, लेट मी चेक वेदर. ओके, तो यहां पर आप देखो कैल्डेरा का फॉर्मेशन हो कैसे रहा. Okay, this is I think some, yes. A magma chamber extrudes lava onto the surface. Okay, see in this image how a magma is rising from all the sides and पूरा मैग्मा इरप्शन हो रहा, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा, बहुत बहुत से जगह से हो रहा वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक होने के बाद क्या होगा, पूरा मैग्मा विल बी पूरा मटेरियल से पूरा निकल जाएगा बाहर. ओके, मैग्मा एक्सपैंड, द गैसेस द मैग्मा एक्सपैंड रैपिडली,
ओके, सो व्हाट विल हैपन, ऑल द मैग्मा मोस्टली, और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, कोलैप्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत बड़ा बॉल शेप कैल्डेरा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज द हाउ अ कैल्डेरा इज फॉर्म्ड। ओके, तो इन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ कैल्डेरा इज फॉर्म्ड, तो आप उस पर बता देना कि बेसिकली इट इज ऑल द मटेरियल्स आर रिलीज्ड। सो ये आपको समझ में आ गया। नाउ विल डिस्कस सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज क्रेटर्स। तो क्रेटर्स क्या होता है कि क्रेटर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कैल्डेरा एंड क्रेटर्स में यही है कि क्रेटर्स आर फॉर्म बाय द आउटवर्ड एक्सप्लोजन। ओके, आउटवर्ड एक्सप्लोजन, जैसे कि मान लीजिए कोई मेटियोर्स जैसे आगे पूरे धरती पे टकराता है, कोई मेटियोर्स अर्थ सरफेस पे आता है तो वो एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है, तो वो आउटवर्ड एक्सप्लोजन होता है ऑफ रॉक्स एंड अदर मटेरियल फॉर्म ऑफ वोल्केनो। ओके, सो आउटवर्ड एक्सप्लोजन की बात होता है। कैल्डेरा फॉर्म बाय इनवर्ड कोलैप्स ऑफ वोल्केनो। ओके, इनवर्ड कोलैप्स की वजह होता है, और क्रेटर जो आउटवर्ड एक्सप्लोजन की वजह होती है। ये दोनों डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। क्रेटर इज यूजुअली मोर सर्कुलर देन कैल्डेरास। क्रेटर जो ज्यादा सर्कुलर होता है, ये देखिए एग्जांपल क्रेटर्स का है। ओके, कैल्डेरास में हैव पार्ट ऑफ देयर साइड मिसिंग बिकॉज लैंड कोलैप्स अनइवनली। तो कैल्डेरा में पता है एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, उसके जो आसपास का जो माउथ का जो सरफेसेस होगा दैट विल बी अ मिसिंग because of very violent explosion. So crater are usually much smaller than the caldera, only extending to a maximum 1 kilometer. So crater और caldera में जब difference बात करते हैं तो crater is more smaller than calderas. Okay, so उसका just 1 kilometer होता है, लेकिन calderas जो होता है calderas होता है वो काफी बड़ा होता है. So this is the difference between these two terms. I hope this video will help you to understand the basic of volcanic eruption. I will record another video on important concept of geography. So please subscribe and like video. Okay, if you will more subscribe and more like, then I will try to cover maximum number of subject including the current affair. Okay, thank you everybody, goodbye.